اس کے تحت ہمارا جو مقصد ہوگا وہ ہوگا سب سے پہلے انٹروڈکشن، پھر ایتھیکل یوز آف نیچرل ریسورسز، 3 views about nature, attitudes towards nature, environmental equity, justice and racism, religious teachings about environment, environmental communication and awareness, collective actions اور آخری میں سمری یعنی خلاصہ۔ تو سب سے پہلے تعارف یعنی انٹروڈکشن۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے ہمیں کتنا زیادہ ہم اپنے کام سے، ہم اپنے جو بھی روزمرہ کے کاموں سے اپنے ماحول کو کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، اور روز بروز ہماری یہ جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ جتنے بھی ماحولیاتی پرابلمس ہیں، دقت ہے، وہ سب پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے جس کا نقصان ہمارے جتنے بھی انسان ہیں ان کو ہی جھیلنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے جو بھی فیوچر جنریشن ہے ان کے لیے، ہمارے آنے والی پیڑھی کے لیے ہمیں صاف ستھری ماحول، صاف ستھری آب و ہوا میسر کرانا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے آپس میں جو بھی جتنے بھی ایتھیکل ویلیوز یا جو بھی مورل ہے، یا جس طرح سے ہمارے اپنے قدرتی چیزوں کی حفاظت کرنا، ان کے بارے میں ہم اس ٹاپک کے تحت جانیں گے، اور مطلب کیا اہمیت ہے ہمارے لیے ان قدرتی وسائلوں کا جو ہمیں فراہم کی گئی ہے ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس کے تحت جتنے بھی انوائرمنٹل ایشوز ہے، جو بھی جسٹس ہے، کرائسس ہے، جو بھی ہے، ریسزم، جو بھی ہمارے ماحول میں دقتیں پائی جاتی ہیں، ان سب کے بارے میں ہم باتیں کریں گے، اور کس طرح سے ان دقتوں کو دور کرنا ہے، ان پریشانیوں کو دور کرنا ہے، اور کیسے ہم لوگوں کے بیچ میں، جتنے عوام ہیں ان کے بیچ میں قدرتی وسائلوں کی حفاظت کرنا، ماحول کی حفاظت کرنا، ماحولیاتی نظام کی حفاظت کرنا، کس طرح سے انہیں یہ سب کرنا ہے، ان کے بارے میں انہیں اویئر کرانا ہے، انہیں آگاہی کرانی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ایتھیکل یوز آف نیچرل ریسورسز۔ تو جتنے بھی ہماری سہولیات، جتنے بھی ہمیں مہیا کی گئی ہیں، جتنے بھی نیچرل ریسورسز یعنی کہ جتنے بھی قدرتی وسائل ہمیں ملی ہیں، تو ان سب کو کس طرح سے ان کا استعمال کرنا ہے، کیسے اس کو مینٹین کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، تاکہ آگے جا کر کے وہ اسی طرح سے ان کا سلسلہ چلتا رہے اور کسی قسم کی دقت نہ آئے، اور وہ صاف ستھرے آب و ہوا بھی ہمیں ملے، اور جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب بھی ہمیں آنے والے جنریشنز کے لیے ملتی رہیں۔ تو ان سب کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے، کیا کیا اس کے لیے حقوق بنائے گئے ہیں، کیا کیا رائٹس بنائے گئے ہیں، کس طرح سے انہیں مینٹین کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو ایتھکس یعنی کہ جتنے بھی اخلاقیات ہیں جو صحیح ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سب ایتھکس کے تحت آتے ہیں، اخلاقیات کے تحت آتے ہیں، اور جو بھی اچھے کام ہیں جتنے، جیسے کہ کسی کی مدد کرنا یا کچھ بھی، تو وہ سب اخلاقیات کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح غیر اخلاقی کام جو ہوتے ہیں، جیسے چوری کرنا یا جھوٹ بولنا، تو وہ سب غیر اخلاقی کام کے تحت وہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں پہلے جاننا ہے کہ ایتھیکل ویلیوز کیا ہے اور نان ایتھیکل ویلیوز کیا ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو انوائرمنٹل ایتھکس ہے یعنی کہ ماحولیاتی اخلاقیت ہے، اس کے بارے میں باتیں کرنی ہے کہ کس طرح سے اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے بیچ میں اور اس کے ماحول کے بیچ میں کیا رشتہ ہے، اور کیسے اس رشتے کو نبھانا ہے، کیسے اس ریلیشن شپ کو نبھانا ہے، اور اس کی جو ویلیو ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اور اس کا جو مورل سٹیٹس ہے انوائرمنٹ کا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ماحول میں نان ہیومن کنٹینٹس یعنی کہ جو انسان کے علاوہ جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، جو بھی جاندار ہو یا بے جان چیزیں ہو، تو ان سب چیزوں کا کس طرح سے رشتہ ہے، ایک طرح سے کس طرح سے تال میل بٹھایا گیا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو جو بھی ہماری بایوٹک جو بھی کمپوننٹس ہوتی ہیں انوائرمنٹ کی، ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور انسان کیسے ان سب چیزوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت کس طرح سے کرنا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے جس حالات میں اسی میں مینٹین رہے۔ تو اس کے لیے 3 سیٹ جو ہے تو بنائے گئے ایتھکس کے لیے، اس میں دکھایا گیا کہ ہمیں 3 چیزوں کی جو ضرورت ہے اس میں بنایا گیا۔ سب سے پہلے جو قدرتی چیزوں کا جو افیکٹ ہو رہا ہے، جو بھی اثر ہو رہا ہے ہماری قدرتی چیزوں پہ، وسائلوں پہ، تو اس کا سب سے پہلے جو ہمارے ہاں ہوا ہے انڈسٹریل ریولیوشن، اس کے بعد جو بھی چینجز، جو بھی بدلاؤ دیکھنے کو ملی ہیں، تو ان کا کیا ان قدرتی چیزوں پہ کیا اثر پڑا ہے، یہ سب چیزیں اس میں نئی جتنے بھی ایفیکٹس ہوئے ہیں، نئی جتنی بھی اثرات ہوئے ہیں، وہ سب اس کے تحت آتی ہیں۔ تو بدلتی ہوئی جو حالات ہیں، جو انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد سے جو بھی بدلاؤ آیا ہے،
तो उसका क्या हमारी कुदरती वसाइलों पे असर पड़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है कि क्या-क्या असरात कुदरत पे उसकी वजह से हुई है। उसी तरह से नई-नई चीज़ों के बारे में हमने जाना है, न्यू नॉलेज अबाउट नेचर, यानी कि नई-नई चीज़ों के बारे में हमें मालूमात हासिल हुई है। जैसे कि अभी हमने पिछली बार पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और जो ये एसिड रेन है वो सब, उन सब चीज़ों के बारे में कैसे वो सब हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में, न्यू टर्म्स के बारे में हमने जाना, और उनके क्या-क्या असरात हैं उनके बारे में हमने जाना। तो ये हमें नई-नई मालूमात जो फराहम हुई है, तो वो भी न्यू नॉलेज अबाउट नेचर के तहत आती है। उसके अलावा जो एक्सपैंडिंग मॉरल कंसर्न्स, तो अभी तक जो हमने देखा कि हमें कैसे क्या असरात हमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हुई है वो देखने को मिली है। उसके बाद हमारी नई जो मालूमात हमें हासिल हुई है कुदरती वसाइलों के बारे में, हमारी कुदरत के बारे में, हमारे नेचर के बारे में, तो वो धीरे-धीरे उनके बारे में हमने जाना कि कैसे अलग-अलग चीज़ें हमारे कुदरत को, हमारी कुदरती वसाइल को असर कर रही हैं, उनका क्या असर पड़ रहा है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेज़ निकलती हैं उनके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने, ओज़ोन डिप्लेशन के बारे में, सब के बारे में हमने पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं। यूनिट, अलग-अलग यूनिट के अलग-अलग टॉपिक में इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा एक्सपैंडिंग मॉरल कंसर्न्स, यानी कि लोगों के बीच में क्या सही है, क्या गलत है, उनको बताना, उनको इस चीज़ के का इल्म में उनके होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो जिससे वो हमारे कुदरत को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ को, हमारी कुदरती वसाइल को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो भी लोगों को सही गलत का पहचान कराना, सही गलत के बारे में मालूमात कराना। उसी तरह से जैसे हमें हक है, हासिल है, हमारे मतलब जितने भी इंसान हैं उन्हें हक हासिल है सही तरीके से जीने का और सही तरीके से इस ज़मीन पे रहने का। तो वैसे ही जितनी भी और भी चीज़ें जो होती हैं, जानदार चीज़ें, जैसे जानवर हैं, जो पेड़-पौधे हैं, जो भी हमारे माहौल का हिस्सा है, तो उन सबको भी उसी तरह से जीने का हक हासिल है। उसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करने का हक हासिल है। और हर हर किसी को अपने-अपने हुकूक हासिल किए गए हैं, चाहे वो एक इंसान हो या उसकी फैमिली हो, या फिर उसके बड़े-बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, जो बड़ी-बड़ी टीम होती है, उन सबको अलग-अलग तरीके से सारा हक हासिल है, और सही गलत की पहचान सबको है, और सबको इस हक का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। 3 व्यूज़ अबाउट नेचर, फितरत के बारे में 3 ख़यालात। तो हमारे जो भी नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में 3 तरह के ख़यालात जो है तो ज़ाहिर किए गए हैं। तो सबसे पहले जो वेस्टर्न, यानी कि यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन लोग की जो हमारी कुदरत के बारे में जो ख़याल है, वो यहाँ पे बताया गया है कि वो समझते थे कि वो इंसान जो है तो ये पूरी जो है तो नेचर का वो मालिक है, कुदरत का वो पूरी तरह से मालिक है। जितने भी हमें कुदरती वसाइल मिले हैं, उन सबको वो इंसान जो है तो उस पे काबिज़ होकर के और उस पे हुकूमत करे और उसको अपने कंट्रोल में रखे। तो ये वेस्टर्न वालों का ये सोच था कि जितनी भी हमें वसाइल मिले हैं, वो सब इंसान के जो है तो दस्तरस में है, और उस पे इंसान पूरी तरह से काबू करके उसको अपने कंट्रोल में रखे। उसी तरह से सिनेटिक, यानी कि चाइनीज़, कोरियन और जापानीज़ लोग की जो सोच थी, उसके तहत वो समझते थे कि जो भी हमें कुदरत ने फ़राहम की है, जितनी भी वसाइल हमें मिले, वो सब खूबसूरत है, वो अपने आप में बिल्कुल परफ़ेक्ट है, बिल्कुल सही है, और उन्हें, अगर हम उनको उनसे जो है तो एक मोहब्बत का ताल्लुक, मोहब्बत का रिश्ता, अगर उसे बदलाव भी लाना है तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जो है तो आराम से उसमें कुछ भी चेंज लाना है तो हम उसे करना चाहिए। इसलिए उनका सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है वेस्टर्न वालों से। फिर जो है तो हमारे मुल्क के लोग क्या सोचते हैं, इंडियन थॉट जो है उसके बारे में क्या, तो ये कॉम्बिनेशन है। हमारे चूँकि सेक्युलर कंट्री है हमारी, तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मज़हब, अलग-अलग मज़हब के लोग होते हैं। तो इसमें पूरा कॉम्बिनेशन, पूरे सब लोगों की मिलकर जो ख़यालात हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि मोटा-मोटी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, अलग-अलग मज़हब के, हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम हो या जैन हो, तो उन सब का एक ही है कि हमारी जो भी नेचर है, वो उसे उन्होंने माँ का दर्जा दिया है, और उसे किसी भी तरह से
किसी भी लोग जो है, कोई भी लोग जो है तो उसे किसी किस्म की कोई नुकसान ना पहुंचाए और उसका ख्याल सही तरीके से रखा जाए और इससे उसे बहुत एहतराम दिया जाए। तो इसलिए हमने देखा कि इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू है और कौन कौन किस तरह से हमारे कुदरती वसाइल को और कुदरत के बारे में कौन क्या एटीट्यूड्स टुवर्ड्स नेचर, यानी फितरत की तरफ रवैया, कुदरत की तरफ क्या रवैया है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग हमारे कुदरत की तरफ रवैया है। कुछ जो है तो इनसे फ़ायदा उठाते हैं, कुछ इसे नुकसान भी पहुंचाते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आगे फिर इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका जम के इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी बर्बादी और तबाही जो है तो उसकी वजह से जो आती है उसके बारे में वो कभी नहीं सोचते। तो ये इसमें जो अलग अलग लोगों के जो थॉट है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यानी बशरियत, इसमें जो है तो इंसान को सबसे पहले जो है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो भी सबसे ज़्यादा इंसान है यहाँ पे, ये जो है तो जितने भी इंसान हैं उन्हें सबसे ऊंची जगह पे रखा गया है, सबसे ज़्यादा अहम जो है तो किरदार उन्हें दिया गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी पूरे कुदरत में जिन्हें जो सबसे ज़्यादा कदर जिनकी है वो है इंसान। तो बाकी जितने भी हैं नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी बेजान चीज़ें हैं, जो भी इस माहौल का हिस्सा है, उन सब में सबसे ऊपर इंसान है। और जितने भी इंसान को ये मतलब इंसान की ज़रूरत है, इंसान को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की हिफाजत करने की, इन सब की देखभाल करने की। और जितने भी नॉन ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी बेजान चीज़ें हैं या जो भी पेड़ पौधे जो इसमें आते हैं, जानदार भी हैं, तो उन सब की देखभाल करना इंसान का फर्ज है और सबका ख्याल रखना इंसान का फर्ज है। और इंसान को चूंकि सबसे ऊंची पोजीशन इसमें मिली हुई है, तो इंसान जो है तो सारे चीज़ों का एक तरह से देखभाल करने वाला भी है और एक तरह से वो हिफाजत करने वाला भी है, प्रोटेक्शन देने वाला भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें जो है तो इंसान को सबसे ऊंची जगह दी गई है और उससे सारे नेचर का एक तरह से मालिक बनाया गया। और चूंकि उसका ये फर्ज है कि वो हर तरह से इसे फायदा पहुंचाए, इसे प्रोटेक्ट करे। इसके तहत दूसरा जो व्यू है वो है स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप यानी जिम्मेदारी। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत से ही, जो आदिवासी लोग हैं या जो भी जो शिकारी थे पहले, जो जैसे जैसे हमारी जो डेवलप करती गई हिस्ट्री जो पुरानी थी, उसमें जो शिकारी थे या जो अलग अलग कबीले के लोग थे, जो तो वो सब चीज़ों की जो पहले से सिर्फ अपना जो है तो फायदा नहीं उठाते थे इन कुदरती वसाइलों से, उनमें एक जिम्मेदारी का भी एहसास था, इन चीज़ों की किस तरह से देखभाल करनी है, कैसे हिफाजत करनी है, वो इसको भी अपना जिम्मेदारी समझते थे। और इन चीज़ों की देखभाल, इन चीज़ों के जो है तो जितने भी वसाइल हमें मिले हैं उन सब की देखभाल, उनकी हिफाजत करना, वो सब उनकी जिम्मेदारी थी। तो ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके तहत जो आती है कि इंसान की क्या जिम्मेदारी है इसमें, वो दिखाया गया कि उसका कुदरत जो भी कुदरती वसाइल वो हासिल कर रहा है, जितने जंगलात हैं या जितने भी अलग अलग हमें जो मिले हैं कुदरती वसाइल, उनका एक तरह से वो गार्जियन है, एक तरह से वो प्रोटेक्टर है। और किस तरह से उसका कहना है कि इससे हमें फायदा उठाना है, इसे हमें बर्बाद नहीं करना है। उसमें जो तो नई नई तकनीक, जिन जो साइंटिफिक चीजें हैं वो सबको भी इन्होंने अपनाया है। और चूंकि इन चीज़ों से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है या जो भी जितने भी लोग आके बसे हैं गांव से जो शहर की तरफ आए हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से जो भी नुकसानात हुए हैं, तो वो नुकसान के बजाय फायदे को भी देखता है और किस तरह से उस नुकसान को फायदे में तब्दील किया जाए, इसके बारे में भी इसमें सोचा जाता है। अब इको फेमिनिज्म, इसमें जो है तो इंसान को जितने भी औरतों को जो है तो मर्द को सबसे ऊपर रखा गया है और औरतों को उनके नीचे रखा गया है, अलग अलग दोनों का स्टेटस दिया गया है। और कहा गया है कि मर्द जो है तो वो हर तरह से इस कुदरत में जो पेट्रियार्कल डोमिनेशन है वो हर तरह से हर चीज़ों पे काबिज है और औरतों को यहाँ पे जो है तो वो उनके मातहत रखा गया है। तो अगर और इस जो हमारी जो ज़मीन है हमारी जो उससे जो है तो एक तरह से कंपेयर किया गया है, मिलाया गया है औरत के वजूद से। और अगर हम किसी तरफ से भी इसे नुकसान पहुंचाते हैं तो हम समझिए कि उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो जितने भी
اس میں جتنے بھی ایکسپلائٹیشن، جتنی بھی بربادی ہوتی ہے، تو اس کو اگر قدرتی طور پہ ہم کسی طرح سے بھی اگر کسی چیز کو خراب کرتے ہیں یا اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا اسے برباد کرتے ہیں، تو اسے ضائع کرتے ہیں، تو اس کی جو بھی نقصانات ہیں وہ سب جو ہے تو اس کی وجہ سے اسے جتنے بھی، جیسے ہم اگر اپنے گھر میں اپنے عورتوں کو جس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے زمین کو بھی نقصان پہنچا، اسی سے کمپیئر کیا گیا ہے. تو اس میں جو ہے تو مرد کو بنایا گیا ہے سب سوچ اور سب چیزوں کا مالک، اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح سے اس کی حفاظت کرے، جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان کی حفاظت کرے اور ان کا دیکھ بھال کرے، صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرے. اس کے بعد آتا ہے بایو سینٹرزم اینڈ ایکو سینٹرزم. اس کے تحت جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ چونکہ ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں اس میں جاندار چیزیں بھی شامل ہیں، بے جان چیزیں بھی شامل ہیں، تو اس میں جو ہے تو سب لوگوں کو ایکول برابر کا قدر حاصل ہے، برابر کی حقوق حاصل ہے، چاہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو. اسی طرح سے بایو سینٹرزم میں دکھایا گیا ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگینزمس ہیں، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، ان سب کی برابر سب کو برابر حق حاصل ہے، ان سب کی برابر ویلیو ہے. تو وہ چاہے ہمارے کام کے قابل ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، لیکن انہیں اتنے ہی حق حاصل ہے اور سب کو ایک نظر سے دیکھا گیا ہے. اسی طرح سے ایکو سینٹرزم میں جتنے بھی نان لیونگ کمپوننٹس ہیں، جو بھی بے جان چیزیں ہیں، جیسے کہ ندی ہے، پہاڑ ہے، یا جو بھی پتھر ہے یا لینڈسکیپ جو بھی ہے، اور ایون مطلب اس میں جو بھی ایکولوجیکل پروسیسز جو چل رہی ہیں، یعنی کہ جو بھی ماحولیاتی نظام اس کے اندر ہو رہی ہیں، جتنے بھی سائیکلز ہوتے ہیں، ہائیڈرولوجیکل سائیکلز یا جو بھی، تو وہ سب کو کسی طرح کی اس میں مداخلت نہیں کی جانی چاہیے انسان کے ذریعے. تو وہ بھی ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نیچرل اسٹیٹ میں جس طرح سے وہ چل رہی ہیں، جیسے وہ ہیں، اسی حالات میں انہیں چھوڑ دیا جائے. اسے کسی بھی قسم کی انسانی مداخلت میں اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو ایک طرح سے جو بھی اس میں کہنا ہے کہ اس میں جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنے بے جان چیزیں ہیں، سب کو برابر کا حق حاصل ہے اور سب کو اپنے اپنے جتنے بھی نیچرل اسٹیٹ ہے سب کو اس میں چھوڑ دینا چاہیے. کسی قسم کی انسانی مداخلت اس کے ساتھ نہیں کی جانی چاہیے. اور سب کو اسی طرح سے جیسے نیچرل سسٹم ہمارے یہاں چل رہی ہیں، جتنے بھی ایکولوجیکل سسٹم، ماحولیاتی نظام جو چل رہی ہیں، چاہے وہ واٹر سائیکل ہو، ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہو، یا الگ الگ آکسیجن سائیکل یا جو بھی ہو، ان سب کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جانا چاہیے. اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جانی چاہیے. انوائرمنٹل ایکویٹی، جسٹس اینڈ ریسزم. اس کے تحت جتنی بھی ماحولیاتی مساوات ہے، اس میں انصاف اور نسل پرستی کے بارے میں. تو یہاں دکھایا گیا ہے کہ ابھی ہم نے جیسے باتیں کی کہ سب کو ایکول ٹریٹمنٹ کیا جانا چاہیے، یعنی کہ سب کو ایک طریقے سے سب کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور سب کی حفاظت کی جانی چاہیے، اور سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جتنا بھی جو بھی ماحولیاتی نظام اس کے یہاں ہے، جو بھی نیچرل پروسیسز چل رہی ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہ کرے، اور جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کسی بھی طرح کی الگ الگ طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو یا گورے ہو یا کالے ہو، کسی بھی بیسس پہ انہیں الگ الگ طرح سے ان کے ساتھ جو ہے تو ان کے ساتھ الگ الگ طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں کی جانی چاہیے. تو سب کو ایک برابر ایک جیسا حق حاصل ہے، اور اس میں کسی طرح کی جو اگر کمی بیشی ہوتی ہے یا لوگ الگ الگ طریقے سے کسی کے ساتھ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ، یا الگ الگ طریقے سے لوگ ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے، تو اس میں جو بھی اس میں دکھایا گیا کہ اس میں کس طرح سے انہیں روکنا چاہیے. تو ہم نے بھی دیکھا کہ چاہے وہ آمدنی کے ذریعے مطلب سوشل سٹیٹس جو بھی ہوتی ہے، چاہے وہ آمدنی کے ذریعے ہو یا رنگ کا فرق ہو یا ذات کا فرق ہو، تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. سب کو برابر کا ماحولیاتی سٹیٹس سب کو ملنا چاہیے. سب کے لیے سارا قانون قاعدہ سب ایک ہے، اور سب جتنے بھی جو بھی ہمیں نیچرل ریسورسز ملے ہیں، جو قدرتی وسائل ملے، وہ سب کے لیے برابر ہے، اور سب کا جتنا جو ہے تو ماحولیاتی مساوات ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. تو یہ جو ہے تو اس میں اسے 3 کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے: پروسیجرل انیکویٹی، جغرافیکل انیکویٹی اور سوشل انیکویٹی. پروسیجرل انیکویٹی میں کے تحت جو بھی فرق کیا گیا ہے، اس میں جیسے کوئی بھی کیسز وغیرہ ہوتی ہے
या कुछ भी मामलात होते हैं जिसमें जो है तो कानूनी मामलात होते हैं, तो उन्हें वो जो है तो शहर से दूर जो भी पसमानदा इलाके होते हैं, जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे उन चीज़ों का फैसला किया जाता है। तो वहाँ पे जो है लोग ये इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के लोग उतने एजुकेटेड, उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और वो उन इलाकों के लोगों को उतना मालूमात भी नहीं होता है। तो इसके तहत जितने भी केसेस हैं जो वहाँ जाकर के सॉल्व किए जाते हैं, तो उसमें जो लैंग्वेज होती है, जो ज़बान होती है, वो इंग्लिश होती है। तो वहाँ जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता है। और दूसरी बात है कि वहाँ लोग भी कम होते हैं, तो उनके साथ जो सवालात करने वाले हैं, या उनके इन चीज़ों पे जो भी पॉइंट आउट करना है, या कोई भी जो है तो मुश्किलात जो भी उन्हें सामना करना पड़ता है शहर में, वो उन छोटी जगहों पे सामना नहीं करना पड़ता, और बहुत आराम से वो अपना इस तरह का काम वहाँ जाकर के कर सकते। तो वो इस तरह से दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पे इन चीज़ों से के मुतालिक जो भी काम होता है, वो कैसे वहाँ पे होता है, और लोगों को इसकी मालूमात नहीं होती है, इसलिए आसानी से लोग अपना काम कर लेते हैं। उसी तरह से ज्योग्राफिकल इनिक्विटी, तो किसी-किसी इलाके में देखा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फल-फूल रही होती है, बहुत रिच होती है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे रोज़गार के भी बहुत सारे नए-नए रोज़गार होते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन जो होती है, आवाम होती है, उन्हें हर तरह से फ़ायदा पहुँचता है, चूँकि वो एरिया जो ख़ास इलाका होता है, वो काफ़ी डेवलप कर जाता है, काफ़ी तरक्की याफ़्ता हो जाता है। लेकिन इन जगह से जो भी फ़ज़ीला वग़ैरह निकलती है, गंदगी निकलती है, या जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है, तो वो चीज़ों का नुकसान ये दूसरी जगह पे जाके उनसे जो है तो दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये खुद तो अपने इलाकों को बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरी जगह जो है तो दूसरी जगह को जितने लोग हैं वहाँ पे वो उससे नुकसान उठाते हैं। वो जो भी गंदगी होती है, जो भी परेशानियाँ होती हैं, उन्हें सामना करना पड़ता है उसका। तो इस तरह से देखते हैं कि ज्योग्राफिकल इनिक्विटी मतलब अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह के वसाइल, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग परेशानियों को झेलना पड़ता है। कोई इलाका बहुत सही तरीके से तरक्की करता है, और कोई इलाका जो है तो इसके जो भी नताइज होते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। उसी तरह से सोशल इनिक्विटी, आप देखें कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में आपको गरीब, अमीर हर तबके के लोग मिलते हैं। तो उन्हें अलग-अलग तरीके से लोग डील उनके साथ करते हैं, उनके साथ अलग-अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये भी बहुत गलत चीज़ है, और इसके खिलाफ भी लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह का है। हमारे यहाँ जो देखा जाता है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, या फिर जो गोरे कालों का भेद है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। तो इसे हम सोशल इनिक्विटी के तहत इसे रखा गया है। तो ये सब मसले जो है, ये सारे मसले जो है तो जितने भी हैं, एनवायरमेंटल इक्विटी के तहत आते हैं। एनवायरमेंटल जस्टिस यानी कि किस तरह से माहौलियाती इंसाफ के बारे में बताया गया है। तो अभी हमने बताया कि जो भी हमारे मुल्क में कानून कायदा है, वो सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो गोरे हो या काले हो, या अमीर हो या गरीब हो, या किसी भी जात पात से ताल्लुक रखते हो, उन्हें हर तरह से सारे जितने भी हुकूक हैं उन्हें हासिल है, और सबके लिए कानून कायदा सब बराबर है, और इससे किसी भी किस्म की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो उसे जो है तो उसके लिए एनवायरमेंटल जस्टिस यानी कि सबको सही तरीके से इंसाफ के लिए ये बनाया गया है। तो इसके तहत जितने भी लॉ बने, जितने भी कानून बने, वो उन सब का इस्तेमाल किसी भी जो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। किसी भी ज़ात-पात या फिर रंग का, या इनकम का, या गरीब-अमीर, किसी के ये सब चीज़ों पे कभी भी इसे नहीं किया जाना चाहिए। ये सबके लिए बराबर है, और सारे जितने भी अवाम हैं सबको एक तरह से हुकूक हासिल है, सबके लिए इंसाफ जो है तो एक तरह की है। तो ये इसलिए बनाया गया कि सबको एनवायरमेंटल जस्टिस मिल सके, इस किसी भी तरह की किसी में कोई फ़र्क ना हो। तो इस पे भी अभी बहुत जो है तो हुकूमत हमारी काम कर रही है, और इस पे अभी और भी काम करना है। अभी भी चूँकि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में काफ़ी केसेज़ देखने को मिलती हैं कि लोग जो है तो अपने पावर का इस्तेमाल करके, या अपने जो भी ताल्लुकात का इस्तेमाल करके, और इसमें फ़ायदा उठा लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी कानून जो है बनाई गई हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से एनवायरमेंटल रेसिज़्म, तो अभी जैसे हमने बताया कि अलग-अलग चूँकि हमारे मुल्क में हर हर तरह की कौम रहती है, सारे कौम यहाँ रहते हैं, मिल-जुल कर रहते हैं।
तो उसमें भी सबको बराबर के हुकूक हासिल है, और ये नहीं कि हाँ किसी को जो है तो हाई क्लास जैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा दौलत वाले हों या बहुत अमीर लोग हैं तो उनको कुछ और ही दर्जा दिया जाए, या जो गरीब हैं उनको कुछ और दर्जा दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए जितने भी काम हो रहे हैं वो सबको बराबर उसका हक हासिल है, सबको एक तरह से रहना। और जो भी गरीब तबके के लोग हैं उन्हें पैसे या जो भी चीज़ों है उनसे उन्हें जो है तो उनके वजह से उन्हें कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और इसलिए देखा गया है कि जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, गरीबों को नौकरी फराहम करना या रोज़गार के नए-नए जो है तो मौके देना, वो ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है। ये नहीं कि हाँ, उन्हें साफ-सुथरे माहौल के बजाय उन्हें अपने लिए एक अच्छा अपना स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए, अपने हालात सुधारने के लिए उन्हें जो है तो जॉब की सख्त ज़रूरत होती है, और उनके लिए वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि उनके लिए साफ-सुथरा माहौल। तो इसलिए देखा गया कि एनवायरमेंटल रेसिज्म में गरीब और अमीर तबके के बीच में क्या-क्या फ़र्क है, उन फ़र्क को कैसे मिटाना है और कैसे सबको इक्वल ट्रीटमेंट सबके साथ एक तरह का जो है तो रखना है ट्रीटमेंट, और सबको एक जैसे एक नज़रिए से देखना है। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है एनवायरमेंटल रेसिज्म के बारे में। तो अभी हमने देखा कि एनवायरमेंटल इक्विटी के तहत एनवायरमेंटल जस्टिस, एनवायरमेंटल रेसिज्म का क्या अहमियत है, और हमारे जो भी हमारी सोसाइटी है, हमारे समाज है, उसमें इसके क्या क्या स्टेटस इसे हासिल है। रिलीजियस टीचिंग्स अबाउट एनवायरनमेंट, माहौलियात के बारे में मजहबी तालीमात। तो जैसे हमने अभी बताया कि हमारे मुल्क में अलग-अलग कौम के लोग रहते हैं, सब मिल-जुल के रहते हैं, और हमारी काफ़ी पुरानी जो भी हिस्ट्री है हमारी, उसमें हमने देखा है कि कैसे अलग-अलग मज़हब के लोग यहाँ पे रहे, और कैसे उनका जो है तो शुरुआत से क्या सफ़र रहा, किस तरह से उन्होंने आगे फिर जो है तो अपने मज़हब में जो भी माना गया है, जो भी अहमियत दी गई है कुदरती वसाइलों के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उनकी हिफाजत के बारे में, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में, उनके वैल्यूज़ कदरें जो हैं, तो उन सबको सब मज़हब में क्या स्टेटस हासिल है, क्या उन्हें किस तरह से उनकी हिफाजत के लिए हर मज़हब में जो है तो उसके बारे में बताया गया है। जो भी अलग-अलग मज़हब है उनमें सब सब सारे मज़हब में किस तरह से हमारे कुदरत की, हमारे जितने वसाइल हैं उन सब की हिफाजत करना है, कैसे उनकी इज़्ज़त करना है, कैसे उन्हें उसी स्टेटस में, उसी हालात में, उससे आगे तक जो है तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए मेंटेन करके रखना है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो भी अलग-अलग मज़हब हैं, जो हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, तो उनकी क्या हिस्ट्री रही है, कैसे वो शुरुआत से ही उन मज़हबों में कुदरत के बारे में, कुदरती वसाइल के बारे में क्या बताया गया है, कैसे उनकी हिफाजत की जानी चाहिए, क्या अहमियत है हर मज़हब में इन चीज़ों की, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हिंदुइज़्म भी हमारे हमारे मुल्क की बहुत पुरानी मज़हब है, और ये इसमें जो है तो हमारे दिखाया गया है कि जो भी गॉड होते हैं, जो भगवान होते हैं इनके, वो सबसे सारे ह्यूमन्स पे जितने भी इंसान हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, सबसे ऊपर उन्हें रखा गया है, और वो हर चीज़ के मालिक है, उन्होंने ही सारी चीज़ें बनाई हैं, इंसान को भी, और जो इंसान नहीं है उन्हें भी, सबको बराबर की सबकी बराबर की कदर है, सबको एक तरह से रहने का हक हासिल है। और हिंदुइज़्म में शुरू से बताया गया है कि कैसे पेड़-पौधों को, कैसे जानवरों की हिफाज़त की जानी चाहिए, और वक़्त-वक़्त पे उनको बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत जो है तो मुक़द्दस नज़र से भी देखते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो वो शुरुआत से ही उनके जितने भी लिटरेचर्स हैं, जितने भी पुरानी-पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, सब में उनका ये मालूमात जो है तो फराहम की गई है कि कैसे शुरुआत से ही उनके लिए कुदरत और कुदरती वसाइल और हमारे माहौल में पाए जाने वाली बेजान और जानदार चीज़ों की क्या अहमियत है। जितने भी उनके पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, उन सब में उसका ज़िक्र किया गया है। सबके बारे में बताया गया है कि किस तरह से जैसे अलग-अलग पेड़ होते हैं, जैसे पीपल के हैं या बरगद के पेड़ हैं, तो उन्हें कितनी रिस्पेक्ट, उन्हें कितनी इज़्ज़त दी जाती है, और उन्हें कितने जो है तो पाक समझा जाता है, उसी तरह से उनकी पूजा की जाती है। उसी तरह से जितने भी कुछ-कुछ जानवर हैं, जैसे उनके दिखाया गया है कि जो भी उनके मज़हब में उन जानवरों की भी बहुत अहमियत है, जैसे गणेश की पूजा की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ उनके लिए मुक़द्दस है, और शुरुआत से ये देखा गया है
कि वो किस तरह से नेचर से जुड़े हुए हैं, कैसे उनकी हिस्ट्री दिखाते, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो भी उनके वेद हैं, जो भी पुराण है, कैसे उसमें बताया गया है कि जो भी सारे कुदरती वसाइल हैं वो किस तरह से उनसे जुड़े हुए हैं, शुरुआत से ही उनसे जितने भी फायदा उठाना है, जो भी पेड़ पौधे ये सबसे, तो वो सब भी बताया गया कि कैसे वो अलग अलग तरह से फायदेमंद है, और सबकी अहमियत भी बताई गई है, उनकी जिंदगी में उसका क्या अहमियत है। अभी भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे पर्व ऐसे होते हैं जिसमें इन चीज़ों की अहमियत दिखाई जाती है। और टाइम टाइम पे जैसे बरगद के पेड़ है तो उसकी जो पूजा की जाती है, तो ये सब चीज़ों को शुरुआत से ही दिखाया गया है। तो किसी भी तरह से उनके मज़हब में भी बताया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी अपने जो भी फ़ायदे के लिए या किसी किस्म की कोई भी नुकसानात जो है तो नेचर को, कुदरत को नहीं पहुँचानी चाहिए, और जो भी कुदरती वसाइल हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचानी चाहिए, उनकी हिफाज़त की जानी चाहिए। और वो बहुत अहमियत रखते हैं उनकी ज़िंदगी में, उनके जितने भी जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं, जो भी पूजा होती है, जो भी, तो उनमें बहुत अहमियत रखते हैं। और अगर किसी किस्म का भी वो नुकसान पहुँचाते हैं तो वो उसे गलत समझा जाता है। उनके मज़हब में इस चीज़ को गलत बताया गया है। तो इसलिए देखा गया कि हिंदुइज़्म में शुरुआत से ही कुदरती वसाइल को, कुदरत के जितने भी पेड़ पौधे जानवर हैं, सबकी अहमियत बताई गई है, और सबको जो है तो किसी किस्म के नुकसानात नहीं पहुंचाने की तबलीग की बताई गई है, और किस तरह से उनको उनकी हिफाजत की जानी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। जैनिज्म भी हमारे यहाँ बहुत सारे जो है तो लोग फॉलो करते हैं। इनके जो है तो जैनिज्म में सबसे पहले बताया गया है कि किस तरह से अपने ऊपर काबू रखना है, अपने ज़ुबान पे काबू रखना है, अपने सोच पे काबू रखना है, और कैसे काम करना है कि किसी को भी आपसे कोई तकलीफ नहीं हासिल हो। तो उसमें सबसे पहले अपने ऊपर काबू रखने की जो है तो बताया गया है उस मजहब में, और किस तरह से उसको जो है तो इंसान को खुद पे अपने एक्शन पे, जो भी काम है उस पर किस तरह से काबू रखना है, और किसी को भी, कोई इंसान को भी अपने काम से या अपनी किसी भी एक्शन से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी है। तो और वहाँ पे सबसे पहले अहिंसा का बताया गया है कि अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, किसी किस्म की खून खराबा कुछ नहीं, उसमें जो है तो उससे सबसे पहली चीज़ बताई गई है। और जो भी जैन होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी का तरीका है, उसमें अहिंसा को माना गया है। वो शांत रहने वाले लोग हैं, और उन्हें अपने ऊपर पूरी तरह से काबू रख के अपना जो भी उनके मज़हब में बताया गया है उसके अपने ऊपर पूरी तरह से काबू रखना है। तो वो भी अपने जो भी कुदरती वसाइल हैं, जो भी नेचर है, उन्हें किसी तरह से किसी किस्म की कोई नुकसान नहीं पहुंचानी है। उनके मज़हब में भी इस चीज़ पे ही जोर दी गई है, और उनका भी जो रहने का तरीका है वो उसमें यही जोर दी गई है कि हमारी जो भी कुदरती वसाइल है या कुदरत है या नेचर है, उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। उसके बाद बुद्धिज़्म में भी जो अहिंसा का, जो अभी हमने बताया कि नॉन वायलेंस का, यानी कि किसी किस्म के खून खराबे कुछ नहीं, वो भी जो है तो सुकून वाला मज़हब है, जिसमें सारे लोग को इक्वल, एक तरह से बराबर हुकूक हासिल है। जितने भी ज़मीन पे जानदार बेजान चीज़ें जो भी पाई जाती हैं, जो भी उन सबको बराबर का जो है तो हुकूक हासिल है एक तरह से, कोई किसी को नुकसानात नहीं पहुँचाए। और वो बिलीव करते हैं, वो यकीन रखते हैं कर्मा पे। कर्मा यानी कि अगर आप कुछ भी करोगे तो अगर वो चीज़ पलट के आपके सामने आएगी। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करने के बारे में बताया जाता है, और किसी भी किस्म के खून खराबे से, किसी को नुकसान पहुंचाने से बचा जाता है। तो उसी तरह से नेचर को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सारी चीज़ों को हिफाजत करके रखना है, सारी चीज़ों की हिफाजत करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये उनके मज़हब में भी बताया गया है। और किस तरह से सारी जो है तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लाइफ की हो, तो लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और उन सब का जो भी ख्याल रखना है, किस तरह से उनको मेंटेन करना है, ये सब बताया गया है उनके मज़हब में। तो यही एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई और कैसे सब चीज़ों का ख्याल रखना, यही बुद्धिज़्म में भी बताया गया। तो हमने आज अभी देखा कि जितने भी मज़हब है उसमें ये सारी चीज़ों पे सारी चीज़ों में देखा गया कि कुदरती वसाइल का एक ही तरह से ख्याल रखने के लिए बताया गया है,
اور کسی بھی چیز کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا ہے، کسی بھی چیز کو برباد نہیں کرنا ہے، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانے ہیں. تو سارے مذہب میں اسی طرح کے خیالات ظاہر کیے گئے ہیں. کرسچینٹی، اس میں بھی ہمارے جتنے بھی بائبل وغیرہ میں جو دکھایا گیا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں بھی سب سے پہلی چیز ہے انسانیت جو ہے. تو انسان کو کس طرح سے دنیا میں لایا گیا ہے، کس چیز کے لیے لایا گیا ہے، اور جو بھی قدرتی وسائل ہے، جو بھی نیچرل ورلڈ ہے، اس کا مالک جو ہے تو ہر طرح سے انسان ہے، اور اسے جو ہے تو بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے اس لیے کہ وہ سب چیزوں کی حفاظت کر سکے. تو اس میں ایک طرح سے وہاں بھی وہی چیز ہے کہ کیسے آپ ایک رشتہ جو ہے تو کیسے نبھاتے ہو، کس طرح سے بناتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے مالک بھی ہیں اور ہر چیز کے جو ہے تو پروٹیکٹر بھی ہیں، سب کی حفاظت بھی کرنا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ کو انسان کو خدا نے جو ہے تو جو بھی گاڈ ہے اس نے کیسے جو ہے تو دنیا میں اسے لایا ہے، اور کیسے ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے، سب چیز کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے سب کا مالک بنایا ہے، اور کیسے رشتہ کس طرح سے نبھایا گیا ہے. تو اس میں ایک طرح سے انسانی رشتہ جو نبھایا گیا ہے وہ 3 طریقے سے ہے کہ ڈیوائن اینڈ ہیومینٹی، یعنی کہ خدا کے بیچ میں اور انسان کے بیچ میں. پھر آپس میں انسانوں کے بیچ میں کیسے ریلیشن شپ یعنی کیسے رشتے بنائے گئے ہیں، اور کیسے انسان اور قدرت کے بیچ میں رشتے بنائے گئے ہیں. تو وہ یہ کرسچینٹی میں 3 چیزوں پہ زور دیا گیا ہے. 3 رشتے جو ہے تو بنائے گئے ہیں. سب سے پہلے خدا کے اور انسان کے بیچ میں بنایا گیا ہے، پھر انسانوں کا آپس میں بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد انسان اور اس کے قدرت، اس کے جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں، جو بھی وسائل سے فراہم کی گئی ہے، اس کے بیچ میں اس کے اور انسان کے بیچ میں کیا رشتہ ہے، یہ سب ان کے مذہب میں بتایا گیا ہے. اسلام میں بھی ہمارے ہاں جو بتایا گیا ہے کہ اس قرآن میں، اور جو بھی ہمارے پروفٹ محمد جو بتائے ہیں، جنہوں نے فاؤنڈیشن ڈالا ہے اسلام کا، تو اس میں بھی جو حفاظت کرنی ہے قدرتی وسائل کی، اور کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے رشتہ رکھنا ہے، یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں. اور اس میں بھی قرآن میں اور شریعت میں بتائی گئی ہے کہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جو بھی قدرتی وسائل ہیں، یہ دنیا میں جو بھی وسائل ہمیں فراہم کی گئی ہیں، ان سب کو کسی بھی قسم کی نقصان نہیں پہنچانا. اگر نقصان آپ پہنچاتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اسلام میں، اس مذہب میں بالکل اس کی ممانعت ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی نقصان کسی کو بھی پہنچایا جائے. اس میں بھی قدرتی وسائل کی حفاظت، قدرت کی حفاظت، سب کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے. اور اس میں بھی لوگوں کو یہی تعلیم دی گئی ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اپنے قدرتی وسائل کو بنا نقصانات پہنچائے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن آپ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں. اور جو بھی چیزیں بنایا ہے خدا نے، اس کا آپ استعمال کریں، لیکن آپ کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس سے کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں انسان کو خود سے خیال رکھنا ہے. خدا نے بہت ساری چیزیں فراہم کی ہیں، بہت ساری وسائلوں سے نوازا ہے انسان کو، لیکن انسان کی یہ جو ہے تو ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے انسان کی کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کی حفاظت کرے اور بنا نقصانات پہنچائے، بنا کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن کی ان چیزوں کا خیال رکھیں. اسی طرح سے سکھزم، یعنی کہ جو سکھ دھرم میں کیا بتایا گیا، اس مذہب میں کیا بتایا گیا ہے. اس کے فاؤنڈر تھے گرو نانک دیو، جو سکھ مذہب کو جو انہوں نے کھوجا تھا، اور اس سے جو بھی جتنے بھی اس میں ٹیچنگ جو بھی تعلیم دی گئی ہے، اس کے تحت جو بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی قدرتی وسائل، ہمارے قدرتی ماحول ہے، اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی لائف فارمس ہیں، سارے لائف فارم، ساری زندگی، جاندار چیزیں جو ہوتی ہیں جنہیں بھی زندگی جینے کا حق حاصل ہے، اور سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ردم میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. قدرتی وسائل بھی اور جتنے بھی جاندار چیزیں وہ بھی، اور اپنے آس پاس سے، ماحول سے، سب سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. تو ان کے مذہب میں بھی دکھایا گیا ہے، بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے ان کے بھی لٹریچر ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ الگ الگ جگہ پہ کس طرح سے وہ سارے جانوروں کے ساتھ کیا رشتہ ہے. بہت ساری کہانیاں ہیں کہ جانوروں کو کیسے وہ اہمیت دیتے تھے اور کس طرح سے تحفظ دیتے تھے، اور ان کی جو مذہب میں ان کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر ہے. تو ہر جگہ جو بھی جاندار اور بے جان چیزیں ہیں، جو بھی قدرتی وسائل ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے پیڑ پودے ہوں، یا جو بھی آب و ہوا ہے، کس طرح سے ان سب کا خیال رکھنا ہے. جو ماحولیاتی نظام جو چل رہی ہے، اس کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، وہ اس مذہب میں بھی
उस चीज़ को अहमियत दी गई है। तो जितने भी मज़हब के बारे में अभी हमने देखा, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो या सिखिज़्म हो, सब में एक ही तरह से दिखाया गया है कि जो भी सुप्रीम पावर है, जो भी गॉड है, जो भी खुदा है, इन सब में तो वो सब लोग जो है तो एक ही चीज़ पे जोर देते हैं कि जितनी कुदरती वसाइल उन्होंने फराहम की हैं और इंसान को चूंकि इन सब चीज़ों का मालिक बनाया है, इंसान सब में जो है तो सबसे ज़्यादा हुकूक उसे हासिल है, तो वो इस हुकूक का इस्तेमाल सही तरीके से करे और सबको एक नज़र से देखे, सबकी प्रोटेक्शन करे, सबकी हिफाजत करे, सबको तहफ़्फ़ुज़ दे और आने वाली जो भी हमारी जनरेशन है उन सब के लिए जितने वसाइल हैं उन्हें आगे भी कैरी करे, आगे के लिए भी उसे हिफाजत से रखे। इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस यानी माहौलियाती मवासलात और आगाही। तो हमारी जितनी भी इन्वायरमेंटल जो अभी हमें बताया माहौलियाती एजुकेशन यानी कि तालीम जो होती है, तो वो किस तरह से अलग अलग लोगों को इसके बारे में बताया जाना चाहिए, लोगों को आगाह करना चाहिए कि क्या क्या इसकी अहमियत है हमारे इन्वायरमेंट की, हमारी माहौल की किस तरह से वो ख्याल रख सकते हैं, कैसे उन्हें अवेयर करना चाहिए कि कैसे इसे जो है तो इसका ख्याल रखना है और कैसे इसकी देखभाल करनी है। तो इसके लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। तो उसे जितने भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम है, जो हमारी तालीमी जो जितने अदारे हैं जो उन सब में किस तरह से इसे बताना चाहिए। चूँकि अभी तो सोशल मीडिया का दौर है और मास मीडिया जो है तो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन्वायरमेंटल एजुकेशन में। तो जितने हमारे जो लोग हैं, जो अवाम है, उन्हें भी इसके बारे में बताना चाहिए और तो सबसे पहले इसे स्टूडेंट्स यानी कि जो भी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से एजुकेट किया जाना चाहिए, उन्हें किस तरह से इसके बारे में मालूमात कराया जाना चाहिए। इसको 2 स्टेज में बाँटा गया है। तो पहला स्टेज जो है तो वो स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच में कैसे इसकी तालीम दी जानी चाहिए, कैसे उन्हें अवेयर कराना चाहिए। और दूसरा जो है तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन, जो भी बड़े बच्चे हैं, जो भी तालिब इल्म है, उनको किस तरह से इसके बारे में बताना चाहिए। तो इससे जो है तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को किस तरह से आगे सबको बताना है, इसके बारे में हम जानेंगे बात। तो सबसे पहले स्कूल स्टेज यानी कि इसमें छोटे बच्चे जो शुरुआत से जो पढ़ाई करते हैं, जो तालीम हासिल करते हैं, तो उन्हें स्टार्टिंग से ही इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी कि माहौलियाती जो भी तालीम है, उन्हें उसके बारे में बताना चाहिए। हमारे माहौल का क्या अहमियत है, हमारे माहौल की जो भी चीज़ें उसको किस तरह से हिफाजत करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बचपन से ही उनके अंदर इसकी जो भी इम्पोर्टेंस उसे बताना चाहिए। तो हमने शुरू से देखा है कि जो भी इंसान अगर उसे सही तरीके से तालीम दी जाए तो वो उसे उस चीज़ के बारे में अगर बचपन से तालीम दी जाए तो उसे उसकी अहमियत मालूम होगी। तो जितने भी हमारे ज़मीन पे जितने चीज़ें हैं, सब जितना लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो ज़िंदगी के अलग अलग ज़रूरियात है, वो उनमें हवा है, पानी है, ज़मीन है, फ्लोरा है। फ्लोरा यानी कि जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फौना यानी कि जो भी जानवर के अलग अलग अनवा पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीशीज पाए जाते हैं, और फिर सन। तो उन चीज़ों की क्या अहमियत है उसके बारे में बच्चों को तालीम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए स्कूल स्टेज में ही उन्हें बताया जाता है। और जो हमारी एनसीईआरटी की जो टीम है, तो उन्होंने इस तरह से सिलेबस को डिज़ाइन किया है, जो भी उनका सिलेबस है उसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। और कैसे अलग अलग किताबों में भी उनकी जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, जो गाइड बुक्स हैं, चार्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनमें इस चीज़ों को दिखाया गया है। उसी तरह से फिर आगे जो है यूनिवर्सिटी में यानी कि जो बड़े बड़े तालिब इल्म हो गए, जो समझदार हो गए, जो मैच्योर हो गए, तो उन्हें भी 3 तरह से उन्हें जो भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी कि माहौलियाती तालीम इस तरह से दी जानी चाहिए कि उसमें 3 कंपोनेंट को रखा गया है। टीचिंग यानी कि पढ़ाई, रिसर्च यानी कि जो भी जो रिसर्च की जाती है, और एक्सटेंशन। तो इसमें वो 3 तरह से काम करते हैं।
اور جیسے ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے، میڈیکل انجینئرنگ کی پڑھائی ہوتی ہے، سائنس کی پڑھائی ہوتی ہے، فائن آرٹس کی پڑھائی ہوتی ہے، مینجمنٹ اور لا کی پڑھائی ہوتی ہے، اسی طرح سے انوائرمنٹ یعنی کہ ماحولیاتی تعلیم کو بھی اس کے کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو بھی ہماری ماحولیاتی تعلیم ہے وہ ہر اسٹیج میں ضروری ہے، اور لوگوں کو چونکہ اس کے بارے میں انفارمیشن فراہم کرنا، معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیسے ہمارے ماحول کا خیال رکھنا ہے، کیسے ہمارے ماحولیاتی انتظام جو بھی چل رہے ہیں ان سب کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو بچپن سے ہی ان چیزوں کے بارے میں بتایا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے لوگوں جو عام لوگ ہیں ان کے بیچ میں کس طرح سے اس کے بارے میں معلومات دینا ہے، اس کو بھی وقت وقت پہ ان کو جو ہے تو انوائرمنٹل ایجوکیشن کس طرح سے دینا ہے، جیسے عورتوں کے بیچ میں یا الگ الگ جو لیبرز ہوتے ہیں، جو مزدور ہوتے ہیں یا پھر چھوٹے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اتنا معلومات نہیں حاصل ہوتی ہے، جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ٹرائبلز جو ہوتے ہیں جیسے جو قبیلے وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اتنا معلومات نہیں حاصل ہوتا ہے، تو انہیں بھی وقت وقت پہ جو ہے تو انوائرمنٹل ایجوکیشن یعنی کہ ماحولیاتی تعلیم انہیں بھی دینے کی ضرورت ہے۔ تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے، صحیح طریقے سے انہیں معلومات نہیں ہوتا ہے، تو اگر صحیح طریقے سے انہیں معلومات کرایا جائے، انہیں ہمارے انوائرمنٹ کی جو اہمیت بتائی جائے، ہمارے ماحول کی اہمیت بتائی جائے، تو وہ دھیرے دھیرے جو ہے تو ان چیزوں میں حصہ لیں گے اور وہ ان چیزوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ تو اس میں بہت ساری والنٹیئر ایجنسیز یعنی کہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، جو ایڈلٹ ایجوکیشن ہے، بڑے بڑے لوگوں کو تعلیم فراہم کرنا، یہ سب کام ہو رہا ہے۔ تو اس میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جو بھی عنوان ہے، ان کو جو ہے تو ریجنل لینگویج، جو جس علاقے کی جو بولی ہوتی ہے، لوکل بولیاں جو ہوتی ہیں اس میں سمجھایا جانا چاہیے، اور اس میں لوگوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور زیادہ وہ اپنے چونکہ لوکل لینگویج میں وہ زیادہ اچھے سے اس چیز کو، اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انفارمیشن جو ہے تو ابھی ہم نے بتایا آپ سے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں تو آپ اس میں بھی ڈال کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ آج کل موبائل ہر لوگ کے پاس ہوتا ہے اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انفارمیشن جیسے پوسٹرز وغیرہ ہے، سلائڈس ہے، چارٹس ہے، جو بنا کر کے الگ الگ طرح سے لوگوں کو جو ہے تو اویئر کیا جاتا ہے، آگاہی کی جاتی ہے، انہیں اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے ان کو تعلیم دے کر کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، الگ الگ ٹاپکس کے بارے میں، تو ویسے ہی انوائرمنٹل ایجوکیشن یعنی کہ ماحولیاتی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے لوگوں کو بیچ میں اس کے بارے میں بتانے کا۔ اسی جیسے دیکھیں گے کہ اسپیشل اوکیزن پہ کوئی بھی ان لوگ کا جو لوکل فیئرس ہوتا ہے، جو میلہ لگتا ہے یا جو بھی فیسٹیولس ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے تہوار ہوتے ہیں، تو اس میں جو ایگزیبیشنس وغیرہ لگتے ہیں تو اس میں بھی ایک ٹاپک اسے رکھنا چاہیے، ماحولیاتی تعلیم کو رکھنا چاہیے، اور جتنے بھی گاؤں وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں تو ان علاقوں میں اس چیز کے بارے میں بھی ان جگہوں پہ جیسے اگر بتایا جائے گا میلہ میں یا پھر چھوٹے فیسٹیولس وغیرہ میں چھوٹی چھوٹی جو ہے تو جگہ پہ، تو لوگوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو ان جگہوں پہ بھی ماحولیاتی تعلیم کو اس کا بھی ایک حصہ بنایا جانا۔ ویسے ہی بڑے بڑے جو بھی مینجمنٹ، انوائرمنٹل مینجمنٹ جو کمیٹیاں بنتی ہیں، بہت سارے لیڈرز ہوتے ہیں، بہت سارے جو افسران ہوتے ہیں الگ الگ شعبہ میں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں، تو انہیں بھی انوائرمنٹل ایجوکیشن یعنی کہ ماحولیاتی تعلیم کے بارے میں انہیں بھی بتانا چاہیے، انہیں بھی ٹرین کرنا چاہیے، اور انہیں بھی ساری ایجوکیشن اس کے بارے میں، ساری تعلیم جو ہے تو فراہم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے تو بولیں گے، اگر مان لیجیے کوئی لیڈر اگر کچھ آپ کو بولتا ہے تو اس سے بہت ساری عوام جو ہے تو متاثر ہوتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، تو اگر وہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے، انہیں صحیح معلومات ہوگی اس معاملے میں، تو وہ صحیح چیزیں جو ہے تو عوام کو بتائیں گے، اور عوام چونکہ ان پہ یقین کر کے ان چیزوں کو اپنائے گی، ان چیزوں کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرے گی۔ تو جتنے بھی بڑی بڑی پوسٹ پہ جتنے افسران ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں، ان سب کو بھی اس کے بارے میں انوائرمنٹل ایجوکیشن جو ہے تو دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری جو بھی منسٹری ہے انوائرمنٹ، فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کی، جو گورنمنٹ آف انڈیا کی، انہوں نے ایک انفارمیشن سسٹم بنایا ہے ENVIS، اس کے تحت یہ دہلی میں لوکیٹڈ ہے، دہلی میں یہ پایا جاتا ہے، تو اس کی جو ذمہ داری ہے، اسے سارے انفارمیشن جو ہے تو الگ الگ انوائرمنٹل ایجوکیشن جو ہے تو الگ الگ شعبے میں لوگ جو بڑے بڑے
ऑफिसर्स होते हैं, जो अफसर होते हैं जो, तो उन सबको ये मालूमात फराहम करता है। और जो नई नई बदलाव आती हैं या जो भी नए नए चीज़ जो जानने को सीखने के लिए जो जानने के लिए ज़रूरत है, तो उन चीज़ों से इन्हें बताया जाता है। उसी तरह से बहुत सारी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से वहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस को जो है तो उनके कॉलेज में एक अलग से डिसिप्लिन उसकी खोली गई है, एक अलग से बनाया गया शोबा उसके लिए, और उसे उतनी ही अहमियत दी गई जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को दिया गया है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम अपने कोर्स में शामिल करें या हम वक्त वक्त के साथ अलग अलग जगह पे इसके बारे में लोगों को तालीम फराहम करें, अपने लीडर्स को या अपने जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जो अफसरान हैं उनको इसके बारे में बताया जाए, उनकी ओरिएंटेशन की जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए, तो वो जो है आगे जा कर के उससे आवाम को फ़ायदा होगा। और वो जो तालीम हासिल करेंगे, जो उनको जो मालूमात हासिल होगी, उन चीज़ों से वो अपने आवाम को आगे बता करके और उन्हें वो भी अपने आवाम को अपनी बातों से कायल करेंगे। तो देखें कि किस तरह से अलग अलग फंक्शनरीज जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हैं, उन सबको किस तरह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन को बता करके उसके बारे में तालीम दे करके और आगे जो है तो आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। कलेक्टिव एक्शंस यानी कि इज्तिमाई इक़दाम, इसमें जितने भी अभी तक तो हमने देखा कि जो भी इंडिविजुअल, जो भी अकेले आदमी था वो कर रहा था, लेकिन अभी इसमें अगर इज्तिमाई तौर पे अगर काम किया जाए, अगर लोग मिलजुल के काम करते हैं तो वो ज़्यादा कारगर साबित होती है, वो ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है। तो बहुत आराम से जो है तो एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को मदद करके और लोगों के बीच में इसकी अहमियत को बताया जाए कि कैसे आपको अपने माहौल का ख्याल रखना है, कैसे आपको जितने भी कुदरती वसाइल मिले हैं उन सब का इस्तेमाल करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनकी किस तरह से उसे इस्तेमाल करना है कि उसे किसी भी नुकसान पहुंचाने के बजाय आप उसे और अच्छे से मेंटेन करें और आने वाले जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और अच्छी सारी सहूलियतें उन्हें जो है तो प्रोवाइड करें। उसी तरह से इसे इन्वायरमेंट ग्रुप यानी कि एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके इसमें काम करते हैं हमारे माहौल के हालात को सुधारने के लिए। और उसमें जो है तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं मिल करके बहुत लोगों को अवेयर करना, बहुत लोगों को आगाही करना, माहौलियाती तालीम देना, ये उनका काम है। और जैसे इन्वायरमेंटल कैंपेन चलाना, बहुत लोग इन्वायरमेंटल कैंपेन चलाते हैं बहुत जगह पे, छोटी छोटी जो है तो आप देखेंगे छोटी छोटी जो फंक्शंस वगैरह होती हैं या इसमें बताया जाता है कि कैसे हमारे माहौल का ख्याल रखना है। और अक्सर जैसे हमारे अभी माहौल में आलूदगी हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके क्या क्या नताइज सामने आएंगे और क्या क्या नुकसान जो हम अपने माहौल को पहुंचा रहे हैं, उनसे जो नुकसान होंगे उसके क्या क्या असरात हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे पड़ेंगे, हमारी सेहत पे पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में कैंपेन चला करके लोगों को अवेयर कराना, इन सब चीज़ों के बारे में बताना, ये भी एक तरह से कलेक्टिव एक्शन यानी सब मिलजुल के लोग कर सकते। तो अभी हमने देखा कि जितनी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी जो भी माहौलियाती परेशानियां या दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है, वो चूंकि हमारी खुद की अपने वजह से भी हो रही है। हम सही तरीके से अपने माहौल का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम सही तरीके से अपने कुदरती वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का किस तरह से इंतज़ाम करना, कैसे इन सबको जो है तो देखभाल करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया। और कैसे अलग अलग लेवल पे इसके लिए काम किया जाता है, अलग अलग लोग इसमें सामने आकर के और काम करके इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। उसी तरह से हमने देखा कि कैसे हमारे यहाँ जो पुरानी इंसान की जो भी हिस्ट्री है, तो उसमें एथिक्स यानी कि अखलाकियात को कितनी तरजीह दी गई है और हमारे जो हुकूक होते हैं उनके बारे में बताया गया। और कैसे जो है तो सही गलत की पहचान कराई गई है, अखलाकियात जो भी है, गैर अखलाकी हरकत दोनों के बीच में बताया गया। और हमारी जो भी हकूक हासिल है इंसान को, उसी तरह से बाकी लोगों को भी हकूक हासिल है, जानवरों को भी इस माहौल में उतना ही हक हासिल है, उन्हें भी जीने का हक हासिल है। वैसे ही पेड़ पौधों को भी हक हासिल है कि वो किस तरह से रहे और जितने भी पॉल्यूशन वगैरह हो रहे हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं वो उससे बच सके। उसी तरह से जितने भी पॉलिसी वगैरह जो बनाए गए हैं, जो अलग अलग तरह से, उसमें कितनी बदइंतजामी है ये दिखाया गया है। और जैसे हमने अभी बताया था, प्रोसीजरल इनिक्विटी, जोग्राफिकल इनिक्विटी और सोशल इनिक्विटी, कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को डील किया जाता है,
उनके साथ अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट की जाती है, अलग अलग तरीके से उनके साथ डील किया जाता है, और उन्हें जो है तो गरीबी, अमीरी, शक्ल सूरत, सब पे, रंग पे, जात पात पे, सब में जो है तो फर्क करके उनके साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। तो कैसे उन्हें इन्वायरमेंटल जस्टिस पहुंचा करके उन्हें जो है तो उनके हालात में सुधार लाया जाए, और इस चीज को जो जितनी भी इनइक्विटी है उसे दूर किया जाए। अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों के बीच में कैसे जो है तो लोग सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते, और कितना ज्यादा मिसमैनेजमेंट यानी कितनी बद इंतजामी पाई जाती है सारे सिस्टम में, वो सब के बारे में हमने बताया कि और कैसे सोशल इन्वायरमेंटल जस्टिस, इन्वायरमेंटल रेसिज्म, ये सब के बारे में अभी हमने बातें की। तो इन सब चीज़ों पे काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे जो है तो इन्हें धीरे धीरे इस तरह की जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी फर्क रखा गया है, उस सब चीज़ों को हटाना चाहिए, और सबको एक तरह के हुकूक, एक तरह की जो भी हमारे जो जितने भी लोग हैं सबको एक नज़र से देखना चाहिए, और एक तरह से ट्रीटमेंट सबके साथ करना चाहिए। इसके बारे में फिर हमने देखा कि कैसे हमारी जो हिस्ट्री रही, हमारी जो पुरानी जो जितने भी हमारे मुल्क में अलग अलग किस्म के मजहब पाए जाते हैं, हर मजहब में क्या तालीम दी गई है, और कैसे इंसान को जो है हर मजहब में जितने भी माहौल हैं, जितने भी माहौलियाती जो भी वसाइल, हमें जितने भी नेचुरल वसाइल, जो कुदरती वसाइल मिले हैं, और हमारे माहौल में जितने चीज़ें हमें फराहम की गई, उन सब चीज़ों का कैसे अलग अलग मजहब में बताया गया कि क्या अहमियत है कुदरती वसाइलों का, और कैसे सब चीज़ों की देखभाल करनी है, कैसे सबको तहफ़्फ़ुज़ देना है, सबको बचा कर रखना है। और इंसान को, चूंकि इंसान को हर चीज़ का मालिक भी बनाया गया है, और एक तरह से उसे सारी चीज़ों का मालिक बनाया गया, लेकिन उसे अपने हदूद के अंदर ही रहना है। इन चीज़ों का न गलत इस्तेमाल करना है, ना इन्हें किसी तरह से एक्सप्लॉइट करना है, और इनको जो है तो फ्यूचर आने वाली जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उन सब के लिए महफूज रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। उसी तरह से इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में अभी हमने बताया कि कैसे अलग अलग लेवल पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी माहौलियाती तालीम दे करके लोगों की जो नज़रियात को बदलना है, उन्हें इसके बारे में मालूमात हासिल करके इसकी अहमियत बतानी है, और किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग शोबा में जो है तो बड़े से लेकर छोटे सबको इसके बारे में बताना है। जैसे स्कूल लेवल में, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल में, हर जगह इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बतानी है, और उसे जो है उनके सिलेबस में इंक्लूड करना, उसे शामिल करना है, और बचपन से ही उनके बीच में ये, उनके जहन में ये डालना है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो माहौल है, उसको किस तरह से ख्याल रखना है। और क्योंकि बच्चे को अगर हम सही तरीके से शुरुआत में ही बताएंगे तो शुरू से ही उसके अंदर ये बात बैठ जाएगी, और वो इस चीज़ का ख्याल ज़्यादा अच्छे से रख सकेंगे। तो स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे उनके सिलेबस में इस चीज़ को शामिल करके, उनकी किताबों में बता करके हम उन्हें अवेयर करा सकते हैं। वैसे ही लोगों को जितने भी ग्रुप्स होते हैं, लोकल ग्रुप्स होते हैं, जितने गांव वाले होते हैं, या छोटे छोटे जो एडल्ट एजुकेशन के जरिए उन्हें जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसे देने की ज़रूरत है, और उनको अहमियत बताने की ज़रूरत है कि क्या अहमियत है हमारी माहौल की, हमारे माहौलियाती निज़ाम की, और हमारे माहौल में पाए जाने वाले सारे वसाइलों की। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।